A confluence is the converging point of three rivers. Symbolically, it is the meeting point of the mind, body, and soul that our confluence today focuses on. The topic of this session is spirituality and humanity. We wish a very good morning and extend a very warm welcome to our Honorable Chief Guest, Srimati Menaka Gandhi, Honorable Minister in Charge, Ministry of Women and Child Development, Government of India. We thank our honorable dignitaries for their presence and for carving out time from their busy schedules for the promotion of welfare of humanity. World Confluence of Humanity, Power and Spirituality is being organized by Shrey Foundation since several years and with ASSOCHAM and Times Foundation from last year to foster humanity through spirituality, peace, and welfare of all. Today's summit focuses on humanity through spirituality for Mother Earth. It emphasizes on hard work without ego and with selfless motives. I now request the Honorable Chief Guest and dignitaries to kindly light with us the symbolic lamp of enlightenment. I would now like to request Srimati Manisha Kanoria Lohia to spiritualize the ambience of today's session with powerful Vedic chants. Om Agnir me Vachi Shritaha Vag Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Vayur me Prane Shritaha Prano Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Suryo me Chakshushi Shritaha Chakshur Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Chandrama me Manasi Shritaha Mano Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Disho me Shrotre Shretaha Shrotragun Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Apo me Retasi Shretaha Reto Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Prithavi me Sharire Shreta Shariragun Hridaye Hridayam Mai Aham Amrite Amratam Brahmani Oshadhi Vanaspatayo me Lomasu Shretaha
लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुन् हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि आत्माम आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनराकात्मागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावृधानः अन्तस्थिष्ठत्वमृतस्य गोपाः ॐ Thank you, Manisha ji, for the beautiful energy spread in this room after the Vedic chants. I would now like to request President ASSOCHAM, Shri Sunil Kanoria, to kindly deliver his welcome address to the spiritually awakened gathering. Thank you. A very good morning to all of you. Honorable Shri Minka Gandhi ji, Honorable Minister Shri Indresh ji, spiritual leaders, guests from globally, friends, brothers and sisters. I think we've had an excellent session yesterday when the President of India was here to inaugurate this program on World Confluence of Humanity, Spirituality and Power. Friends, we from ASSOCHAM, along with Shri Foundation and the Times Foundation, have been working towards this goal to create an environment where spirituality comes to our work life, and how, as enterprises, as businesses, we can benefit from the values which we can derive from our ancient history, the spirituality which we can imbibe within our people, which can help us to create an environment, a society, which is more happy, which believes in equality, believes in an environment where we are able to develop a society with the value system which the Indian traditions have built on. We have a galaxy of speakers today also, and I'm sure we will learn a lot, and if we are able to take away a couple of thoughts from the teachings and learnings which we get in these 2 days and bring it into our day-to-day life, I think we'll have a much, much better life and happiness within our organizations and enterprises. I wish this a great success during the day, and we look forward to hear more and more from our spiritual leaders, our leaders and speakers who will share their perspectives to us. Thank you very much. Thank you, Sunil ji, for all your support. We have a very special program lined up for today. There is a program based on the song of Sach Bharat theme, which we would now like to present to you with a little dance and music.
बतलाए सच भारत, ओ समझे और समझाए, सारी दुनिया को दिखलाए, ले आए सच भारत, अपनाए सच भारत, ओ समझे और समझाए, सारी दुनिया को दिखलाए। काम करो, कर्म करो, फल की आशा मत करो। प्रेम करो, स्नेह करो, द्वेष की भाषा मत करो, बता दो विश्व को ये सच, सच भारत, सच भारत। काम करो, कर्म करो, फल की आशा मत करो। आज करो, अब ही करो, कल की भाषा मत करो, बता दो विश्व को ये सच, सच भारत, सच भारत। ओ बात जो चली थी हिमालय के उस पार से, बात जो बही थी कभी गंगा की धार से, सहरा की रेत से, बागों से, खेत से, कि बस इंसान को इंसान मान ये धर्म है। बात जो छुपी है कबीर के नाम में, बात जो लिखी है इकबाल के कलाम में, बुद्ध के पैगाम में, नानक सतनाम में, सारे संसार का ये सार प्यार का कर्म है। बता दो विश्व को ये सच, सच भारत, सच भारत, सच भारत, सच भारत। मगा 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 रे सनी सा, मगा 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 रे सनी रे, सनी रे रे मगा रे सा 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 रे नी धा पा 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 रे गा रे सनी सा। प्रांत धर्म बोली है अलग पर एक चाह है, नेक है इरादे और अपनी नेक राह है। लड़खड़ाए घर कोई बढ़ के हाथ थाम ले, नई रोशनी की ओर आज भारत का कदम है। मानवता धर्म है और प्रार्थना सच भारत है, सत्य के मार्ग की संकल्पना सच भारत है। बंधुता खंडता न्याय है विश्वास है, जल की हर बूंद ही किसान का नया जन्म है। बता दो विश्व को ये सच, सच भारत, सच भारत। ले आए सच भारत, बतलाए सच भारत, दिखलाए सच भारत, अपनाए सच भारत, सच भारत। Srimati Indu Jain, chairman of Times Foundation, the Times of India group, could not be present with us today, but has sent us a very special message, which we would now like to share with you. मैं एसोचैम की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें सबको इस पर विचार करने का एक अवसर दिया। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है अपना अध्ययन, यह एक किसी ईश्वर की पूजा नहीं है, बल्कि खुद को जानने और समझने का विषय है, एक माध्यम है। यह हमारे उलझे हुए मन की
अनगिनत परतों का एनालिसिस भी है। जिस तरह सूर्य के निकलने पर धरती का कोना कोना चमक उठता है, उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए हमारी आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन में हर तरह का अंधेरा ख़त्म कर देता है और सभी हमारे कर्म को अपने उच्चतम स्थिति को प्राप्त करता है। यह तो हम सभी मानते हैं कि कर्म ही असली पूजा है। स्पिरिचुअलिटी हमारे इसी कर्म को पूजा के स्तर पर लाने का एक साधन है। आइए हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर और सच भारत को एकता की ताकत दें। इससे देश में मूवमेंट की तरफ बनाया जाए और इसे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाया जाए। जीवन की सुंदरता इसी में है। हमारे जीवन का सत्यम शिवम सुंदरम इसी में है। इसी के साथ सब प्रेम। धन्यवाद। We would now like to request our Honorable Chief Guest, Srimati Menka Gandhi ji, to kindly felicitate and honor the Swachh Bharat winners for the Swachh Bharat Samman that we have today. The winners are, in the corporate field, first position, Shri Krishna Exports, awards to be received by Mr. Arjun Dholakia. Runner-up for the corporate category is Dalmia Bharat Group, award to be received by Mr. Ajit Menon, Group HR Head. Swachh Bharat Samman awardee for the NGO or institution category, first position, India Vision Foundation, Ms. Monica Dhawan. Runner-up for NGO or institutions, Bhakti Vedanta Hospital and Research Institute, a project of Sri Chaitanya Seva Trust. Mr. G. Venkataraman will receive the award. May I now request Srimati Menka Gandhi ji to kindly share her thoughts on this confluence of humanity with us. Dr. H.P. Kanoria, who has, through his own life and endless commitment, has made spirituality, has endeavored to bring it into the workplace. Shri Sunil Kanoria, his son, who's now the president of ASSOCHAM, daughters-in-law, multi-talented daughters-in-law, and grandchildren. Shri Indresh Kumarji of the Rashtriya Swayamsevak Sangh. And ladies and gentlemen, I'm very happy to be here. I'm not going to speak for very long, but some time ago, maybe about 10 years ago, I was on a plane and there was a young man sitting next to me. And after a little while, he introduced himself to me and said, "Do you know me?" Now that is unusual because normally people ask me that are you so-and-so? So I said, no, I'm afraid not. So he said, I'm the youngest billionaire in India. And he said, I come from Baroda. And I said, how interesting at such a young age that you've been able to do this. And I said, and after a little while, of course, being Indian, my curiosity got the better of me. And I said, what do you do? What have you done to become this billionaire? And he said, my name is, and he was a Jain. He said, I'm so-and-so Jain from Baroda, and I sell gelatin. And I said, what? You sell cow bones? And you made your money through disintegrated cow bones to be a billionaire, being a Jain. And he said, oh, you know, what I do is completely different from who I am.
When I come home, I do my pujas and I'm very spiritual and I'm vegetarian. And what I do is completely different. And I felt somehow violated, I sort of couldn't bring myself to speak to him anymore. The concept of work being completely different, who I am and what I do being completely different, is a 20th century ethic that has somehow crept into the world and has divorced the essential person from whatever he does. It's time we reintegrated who you are and what you do. I know that all of you are not just literate, but highly evolved people. God has given you a lot of power. With that power must come thought. Spiritualism is not the icing on a cake. It is the cake itself. If you can understand that who you are and what you do is the basis of a good life, the basis of spiritualism, then maybe India will benefit, you will benefit, and we will have a truly happy society. Thank you for giving me this opportunity. I am indebted to the senior Mr. Kanoria for setting up this program every year and for giving us all an opportunity to learn from each other. Thank you. In today's world, there is a lot of cruelty on animals, and you have taken up the cause of animals as well. How do you think can spirituality help in generating and protecting compassion for animal welfare? Like Sri Krishna has said that he is seated in all living beings and his energy is in all living beings. What do you have to say about it? Do you think spiritual awareness will reduce the torture and killing of animals? I think the answer to it is to stop calling them animals. They're beings. Next time, you will be there and they will be here. And they will be discussing us. Next time, and there always will be a next time, we will be at the mercy of the same people that now are sitting here. So why not just think of them as just beings, the same life? Every single being is exactly the same as a human. Do you know that when an ant goes to sleep at night, it makes a little pillow with its mouth of mud and puts it under its head because it can't sleep without a pillow. And then it takes its front paws and puts them like a baby. That an ant hill has bedrooms, drawing rooms, kitchens, gardens, garages, that has teachers, it has schoolrooms. What is different from them to us except that they're much cleverer? Every single being fears death, fears pain. Every single being loves. Every single being has a family. How can we possibly think of them as different to us? Not one of them has any less powers than us. The only difference between them and us is that we like killing. For us, killing for shoes, killing for buttons, killing for not even just eating, killing for wearing, killing for fun, having a sport in which you take a live sheep and then use it as a polo ball. This is the human being. Not a single non-human being kills others for fun, kills others to wear them, eat, to do anything. Yes, eat if they're made that way. But we are not. Every being in our body is vegetarian. Every being. Every intestine, your pH values, everything. And yet we persist because we like it. So that's the only difference. We like torture. We like inflicting pain. And the result has been, when you inflict pain, your dharma is, do unto others as you would have them do unto you. The moment you break that dharma, the world becomes a misery. And that is why we are so miserable all the time. If we would just follow this simple thing, if you don't like being slapped, don't slap. If you don't like being killed, don't kill. If you don't want to be worn as somebody's shoes, don't wear them. That's, I think, the basis of it. That how do we increase compassion? Simply through empathy.
The minute you see an animal, don't think of it as the other. This is you. This is going to be you, this was you, this is you. Now, ab vyavastha karo, uske liye. When you feed yourself, go out and feed the birds. Go out and feed a dog. Don't distinguish. There is nothing to be distinguished from. The same emotions, the same fears, the same wants exist in all of us. If we can recognize that, we can change the world. Thank you. Thank you so much, ma'am. We would like to thank you and express our gratitude to you for gracing the World Confluence despite your busy schedule. Thank you so much, ma'am, for being here with us today. Sir, thank you for being here with us today. I would like to ask you a few questions related to spirituality and humanity, where if you share your views with us, maybe it will help us to elevate our spirituality quotient. In Ji, Guru Nanak Ji had said, "Friend, bear no hate for anyone. One God dwells in every heart." How do you think spirituality fosters brotherhood and sisterhood? The start of the spiritualism, the mind, heart and soul, and body also, when it is without angerness, without hatredness. If there is a anger, there is a hatredness, spirituality can't took birth. Spirituality janam hi nahi le sakti. First condition for the birth of a spirituality, man should be without angerness, without hatredness, and without the wants. If there are wants, if there is a angerness, if there is a fearness, if there is a hatredness, there is no scope man can be a spiritual. So for the first time, for that, when it becomes the second stage, if you have love and affection for others, live for others, then there is a scope that spirituality can took birth. तो इसलिए उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसमें हो. I give one example. 5,200 years before, there is a one great king on the earth. On earth, that is in Bharat. All the people in the universe came to meet him. Mantri, Mukhyamantri, Pradhan Mantri, President, Prime Ministers, they came to meet that king. वो सम्राट थे. All the millionaires, either a Lakhpati or a Krodpati, Arabpati or a Shankhpati, they also came to meet him. All the intellectuals in the universe, all came to meet him. But he had gone to meet one person. The person, उसका क्वालिटी क्या था, शेप क्या था? He has no roof. उसका घर नहीं था. He has no cloth to wear. Even he can't provide their sons and daughters. He has not even a eatable things. अगर दिन में एक बार मिल गया तो thankful, नहीं तो जरूरी नहीं है मिलेगा. अगर बीमार हो गए तो दवाई खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था. The poorest of the earth, उसको वो सम्राट मिलने के लिए गए थे. वो सम्राट कौन थे? जिनको जगत मिलने आता था. और वो व्यक्ति कौन था जिसको जगतपति मिलने के लिए गए थे? The Lord known as Krishna, whom he gone to meet, that is Sudama. इसलिए he established the principle of the spirituality, love the poor, respect the poor, develop the poor, which is in the last of the everything. ज्ञान के अंत में जो खड़ा है, रोटी के जो अंत में खड़ा है, जीने के जो अंत में खड़ा है, अगर आप उसको प्यार करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, it is the basic principle of spirituality, or that basic principle is of good governance.
जिस शासन में, शासनकर्ता में, ऋषि मुनि में और ब्यूरोक्रेट में ये गुण होगा, इसलिए वहाँ एक प्रिंसिपल ले डाउन किया गया है, एजुकेशन विदाउट मॉरल वैल्यूज मेक्स ए मैन क्रिमिनल. द जॉब, द मनी, the industry which job has no social serviceness, that creates a corrupt man, not a spiritual man. इसलिए जॉब में सोशल वेलफेयरनेस होना चाहिए और एजुकेशन के अंदर मॉरल वैल्यूज चाहिए. यहाँ से करप्शन और क्राइम ख़त्म होता है और स्पिरिचुअलिटी तेज गति से बढ़ती है. मैं इसके एक छोटी सी बात कहकर समाप्त करूँगा. भाईचारा कैसे आता है तो उसको भी समझना बहुत आवश्यक है. कहते हैं व्हेन यू सर्व द पुअर, व्हेन यू केयर द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, व्हेन यू टेक केयर ऑफ द which is in a good, not in a bad shape in the family. वो फिजिकली इल हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड हो सकता है. कहते हैं व्हेन यू सर्व द पुअर यू गॉट, आपको पुण्य मिलता है. धीरे धीरे नरक का दरवाज़ा बंद होता है और स्वर्ग का दरवाज़ा खुलता है. कहते हैं व्हेन वी सर्व द पुअर, व्हेन वी सर्व द लास्ट, वी इन्वेस्ट ओनली 100 or 1000 or 1 lakh, but in response he gives which can't be purchased throughout the world in a 1 crore also. वो पुण्य हमें देता है जो हम 1 करोड़ में भी खरीद नहीं सकते. कहते हैं when you serve the last you are a spiritual man, if you crush anybody you are a rascal man. इसलिए ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स दे करके spirituality, it is a symbol of unity, unanimity, integrity, brotherhoodness. इसलिए इसमें से प्यार जब आता है तो आता है. तो एक वाक्य का प्रयोग करूँगा. सेलिब्रेट लव वैलेंटाइन डे बट एज ए राधा एंड कृष्णा. वैलेंटाइन डे में देर इज ए स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड तलाक, बट इन राधा एंड कृष्णा there can't be any conflict and there can't be any talaq. इसलिए love is the basic way to develop the spirituality and brotherhood. Thank you sir for lovely thoughts that you have shared. And जैसे कि आपने कहा वैसे ही इसी कॉन्फ्लुएंस में लेट श्री डॉक्टर प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा था कि spirituality can eliminate crime, not legislation. Moving on to Shri Giriraj Singh. Sir, your thoughts are very revolutionary. From the core of your heart, you've always wanted spirituality and harmony and peace. What do you think is spirituality in the true meaning for you? देखिए, मैं तो आज आया था सुनने के लिए. मैं हरि भैया जिन्हें कहता हूँ, हरि प्रसाद कनौरिया जी, ये साल में एक बार ह्यूमैनिटी, पावर एंड स्पिरिचुअलिटी पर कार्यक्रम रखते हैं, पूरे दुनिया के लोगों को बुलाते हैं. मेरा सौभाग्य है कि इंद्रेश जी ने जिन शब्दों को रखा, मेनका जी उसके पहले बोल रही थी, सामने मेरे आराध्य, मेरे पूजनीय बैठे हैं स्वामी जी RK सिन्हा जी. मेरे मन की पीड़ा है जो मैं यहाँ कहूँ तो शायद हरि भैया मुझे फिर दोबारा नहीं बुलाएंगे. आज पूरी दुनिया में जो धर्म है, जो इंद्रेश जी कह रहे थे प्रेम, एक ही, मैं किसी आज धर्म की व्याख्या लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन प्यार के बदले घृणा फैला रहे हैं. क्या उस धर्म को हम धर्म मानते हैं? जिस धर्म में हिंसा हो, जिस धर्म में घृणा हो, ये हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका बेसिक ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, उसने कभी नहीं कहा
कि सनातनियों एक हो जा, हिंदू धर्म को मानने वाले एक हो जा, जैन एक हो जा, बुद्ध एक हो जा, बौद्धिस्ट। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। मुझे आज पीड़ा होती है, जिस धरती पर बैठ करके कभी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, इस युग में हजारों साल पहले इंद्रेश जी ने बताया, आज नए परिवेश में और जिस धरती पर हम हैं, वो आज नई परिभाषा में सेकुलरिज्म एक ऐसा शब्द आ गया है जिसे हम नकार नहीं सकते। और वो सेकुलरिज्म जो सनातन धर्म, जो मानवता का धर्म है, जिसने घृणा नहीं सिखाया, मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं है, ना मुझे भय है। एक धर्म कहता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के नाम पर उस गरीब को धर्म परिवर्तित कराता है। क्या वो धर्म है? क्या वो प्रेम है? क्या वो सेवा है? मैं ऐसे धर्म के नाम पर सेवा करना एक तरह से मानवता के नाम पर कलंक है। कोई धर्म कहता है पूरी दुनिया में मैं ही रहूंगा, दूसरा नहीं रहेगा। क्या उसके उस प्रेम में मानवता है? नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर जब मैं आपका लोगो देखता हूं हरि भैया, तो आपने लोगों पर पूरी दुनिया के धर्म को लाके इकट्ठा कर दिया है। आज ये भी एक फैशन हो गया है। मंदिर, कई ऐसे धर्म स्थल हैं जो वहां दिखाते हैं कि सारे धर्मों का समावेश यहीं है, लेकिन सभी धर्मों के बेश में प्रेम है, और वो प्रेम जहां नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो मानवता के कल्याण के नहीं है, बल्कि एक खास संप्रदाय के कल्याण के लिए है। आज भारत, मैं दूसरी ओर थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं। भारत में आज जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पूरी दुनिया का 17.5% आबादी भारत में है। 17.5% आबादी भारत में है, और जमीन है 2.5%। पॉपुलेशन होल कंट्री का 17.5%। लैंड पूरी दुनिया का 2.5%, 2.5%, और पानी है 4.2%। क्या ये सभी धर्म के लोग आवाज उठाएंगे कि देश में एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने? मैं चाइना का हिमायती नहीं हूं। चाइना ने आज विकास की ऊंचाई पर, लोग कहते हैं पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियलिस्ट चाइना भाग रहे हैं। जिससे पूछो, कह रहा चाइना में मैंने एक सेटअप खड़ा किया, बड़े बड़े लोग। लेकिन अगर वो वहां जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया होता, तो एक रिसर्च कहता है कि 50 करोड़ लोगों को रोकने का काम किया, तो आज वो विकास की ऊंचाई पर नहीं होता। तो धर्म आज अपने अपने एजेंडा पर, जैसे पॉलिटिकल पार्टी चल रहे हैं। मैं 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में गया था। वो कार्यक्रम था कुपोषण, मालन्यूट्रिशन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और एक अच्छा स्वास्थ्य, इसी दिल्ली में। मैंने कहा कि आज जो संसद में बहस होनी चाहिए गरीबी, कुपोषण, पानी और हवा के लिए, वो नहीं हो रहा है। आज एक, जैसे आप धर्म, सर्वधर्म को यहाँ जमा किए हैं पूरी दुनिया से, यहाँ हो रहा है। तो मैं आज
इस मंच से न मेरे पास नैतिकता है कि मैं कहूं और मेरी बात लोग सुने, मुझ में नैतिकता नहीं है। लेकिन मैं दुनिया को कहना चाहता हूं इस मंच से कि अगर भारत एक ऐसा जमीन रहा जो मानवता को प्यार और प्रेम सिखाने वाला, जो सनातन एक ऐसा धर्म रहा जिसके आधार में प्रेम रहा और मानवता रहा, इस धरती पर अगर प्यार और प्रेम का संदेश, गरीबी मिटाने का संदेश, ये ह्यूमैनिटी, पावर, स्पेशलिटी, भूखे भजन न होय गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला, हमारे छोटी छोटी कहावत में। हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, भूल गए राग रंग भूल गई छाकड़ी, याद रहे तीन चीज नौन तेल लकड़ी। जहां हमारे पेट में अन्न नहीं हो और अपना अपना राग अलापने का धर्म हो, वहां न मानवता खड़ा हो पाएगा, न वहां प्यार खड़ा हो पाएगा, और न वहां धर्म की असली व्याख्या हो पाएगी। मेरी वाणी से किन्हीं को चोट लगा होगा तो मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन धर्म मानवता की बात तो लोग करते हैं, लेकिन धर्म में जैसे कोई किसी शहर का जो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी होता है वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, आज धर्म में भी वही होड़ लगी हुई है कि सेवा के नाम पर धर्म को बढ़ावा देना, किसी के धर्म को परिवर्तित करवा देना, किसी को डंटे की चोट पर मेरी वाणी सुनो पूरी दुनिया में मैं ही रहूंगा। मैं समझता हूं ऐसे धर्मों का विरोध होना चाहिए, ना कि एकीकरण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने सही कहा कि सच्चता और स्वच्छता हमें धर्म से शुरुआत करनी होगी, धर्म के अंदर में भी सच्चता और स्वच्छता का बढ़ावा देना पड़ेगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी एट वर्क भी है, और हम पूछना चाहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक्सटर्नल चेंज इज़ यूजुअली शॉर्ट टर्म बट एन इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ यूजुअली परमानेंट। Do you think that for an organization to progress, it is necessary for every member of the organization to go through an internal Kaizen, जो अपने करते हैं, quality control करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि Japanese method of Kaizen है हमारे, तो क्या ये daily quality check अपने खुद के सोच, शब्द और कर्म के ऊपर अगर अपने हर इंसान रखे, तो आपको क्या लगता है कि उससे organization की प्रगति और बढ़ेगी? मैंने पहले भी कहा कि आपने विवेकानंद की बात कही और आपने कहा कि ऊपर और अंदर, बाहर और अंदर, ये सारी चीजें अंदर की है, ये बाहर की चीजें नहीं है। और आपने संगठन और कई चीज़ों की ओर उल्लेखित किया है। मैं तो कह रहा हूं, जो पहले कहा फिर कह रहा हूं कि ये धर्म, ये नैतिकता, ये मानवता, ये प्यार, ये प्रेम तभी तक होगा जब मेरे अंदर भूख नहीं रहेगा। आज लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, कुपोषण से जूझ रहे हैं, सर के ऊपर छत नहीं है उससे जूझ रहे हैं। हम मानवता की बात करने चले हैं, हम प्रेम की बात करने चले हैं। जब घर में हम कॉर्न फ्लेक्स और दूध लेके चलते हैं तो मानवता की बात ठीक लगता है, लेकिन जिसके तन पर इस ठंडक में कपड़े नहीं हैं, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, न वो मानवता की बात उसे समझ में आएगी, न प्रेम की बात।
राजनीतिक दलों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। अगर राजनीतिक दल, कोई ऑर्गेनाइजेशन 70 साल से जिस देश में कुपोषण से नहीं मिटा पाया, उसको तो चाहिए था अपनी राजनीतिक दुकानें बंद कर देनी चाहिए। जापान 12 साल में अपने आप को खड़ा कर लिया। उतने बड़े आपदा के बाद, परमाणु विक्षिप्ति के बाद हम कहाँ खड़े हैं? हमने मानवता को जोड़ पाए, न कुपोषण से मिटा पाए, न गरीबी से मिटा पाए। इसलिए बाहरी और अंदर ये दोनों लड़ाई चलता रहेगा। बाहर में मेरे बड़े बड़े दाढ़ी होंगे, धर्म के लिए टीका होंगे, वो दिखेगा, वस्त्र होंगे, दिखेगा, लेकिन न वो वस्त्र से मिटेगा। आज भी जिस धरती पर 70 साल हो गए, कहीं दलित को प्रवेश, मंदिर में प्रवेश नहीं, वो अंदर परमात्मा और बाहर कहाँ खोजेगा? इसलिए मेरा मानना है कि पहले गरीबी से लड़ाई लड़नी है, कुपोषण से लड़ाई लड़नी है, तभी हम मानवता की सही लड़ाई लड़ पाएंगे और तभी लोगों के अंदर प्यार प्रेम आ पाएगा। So well said. Thank you so much, sir. I would like to request Shri Hari Prasad Ji Kranoria, Chairman Shri Foundation, to kindly felicitate Shri Indresh Ji and Shri Giriraj Ji Singh. We are privileged to have amongst us today Shri R.K. Sinha Ji, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha. May I request R.K. Sinha Ji to kindly come on the stage. Sir, we are also honored to have amongst us today Swami Chidanand Ji Swaraswati, President and Spiritual Head of the Paramarth Niketan Ashram, Rishikesh. We would also like to invite Acharya Dr. Lokesh Muni Ji, Founder President, Ahimsa Vishwa Bharati, New Delhi. Sir, please come on the stage. Thank you so much for being with us today. Swami Ji, Hinduism teaches us the basic principles of divinity in humanity. Lord Krishna's energies are inanimate and animate. What are the main ingredients to practice making one's life divine while being in the material world? Sir. Very simple. Spirituality, the moment we understand the meaning of spirituality, it pertains to the spirit. When our focus is on the spirit, then there is no us versus them. There's no other. We are all one. The spirituality teaches us that we are all one. And the oneness today is being lost. We have to bring ourselves back to that oneness, that we all are one. If you see the Upanishad, Ishavasya sarvam yat kincha jagatyam jagat, tena tyaktena bhunjitha magridaha kasya sviddhanam. The whole world is pervaded with the same divine. You can call that divine by any name, and you can worship the divine by any form, but he is one. As our respected leader, Indresh Ji was explaining, that oneness, today the moment we feel that oneness in all, the love is there, the harmony is there, the peace is there. The moment you lose that shift, you lose that focus, immediately you see the hatred, you see the violence. Violence only can happen when there is other. Other, I remember once, few days back, I got hurt. My toe was hurt. And immediately, the moment this right toe was hurt, I didn't have to pray to my left leg, can you please make me walk? Can you please take care of the weight of my right leg? Immediately, no prayers, no yoga, no meditation, no mantra. Immediately, the left leg came forward and made me move.
That's what is needed today. That is true spirituality. Spirituality is not a weekend business. Spirituality is not also a Monday to Friday business. Spirituality is all the time, every minute. It's like a breath. Without breath, you can't live. No breath, no life. Yes, स्वामी जी. Very simple. जैसा कि आपने कहा, आपने reach out किया अपने left foot को, and it responded. All we need to do today is to reach out. हम वहीं पे सहम जाते हैं, reach out नहीं करते हैं. Holding that thought of oneness and coming to Shri Imam Ji Umair Ahmed Ilyasi Ji. Sir, thank you for joining us today. In this confluence, we celebrate the convergence of all religions for peaceful coexistence and harmonious coexistence with the cooperative spirit. Do you think spirituality through humanity is that invisible binding power that connects one and all? What do you think, sir? Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasalli ala rasulihil kareem, amma ba'd. मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ, चूँकि अभी बहुत सारे हमारे स्पीकर्स थे, हमारे ख़ास तौर पे भाई इंद्रेश जी, भाई गिरिराज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी स्वामी जी ने भी इस तरह की बात कही है कि असल में जो मज़हब है उसको, मज़हब को लोग समझ नहीं पाते कि मज़हब है क्या चीज़। हमें इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा मज़हब है, धर्म है, जो हमें एक होने की बात करता है। कोई भी धर्म अलग करने की बात किसी धर्म में नहीं मिलेगी, कोई धर्म खराबी की बात नहीं करेगा। अभी मेरे भाई गिरिराज जी कह रहे थे कि कोई धर्म है जो कहता है कि हम ही रहेंगे इस दुनिया में। ऐसा ना हुआ है, ना होगा, ना ये हो सकता है। हम सब आदम की औलाद हैं, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक अल्लाह ने सबको बनाया है। आप पैदा हुए हैं, ये आपकी चॉइस नहीं है। ये आप पैदा हुए हैं, ये आपकी चॉइस नहीं है। और आप मरेंगे, ये जहां मरेंगे, ये आपकी चॉइस नहीं है। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है और उस निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात सच है, आज पूरी दुनिया में टेररिज्म, आतंकवाद, धर्म के नाम पर, अभी हम स्वामी जी और मैं यूनाइटेड नेशंस के, अभी हमारी बैठक चल रही थी यहाँ बैंकॉक में। अभी वहाँ पर हम, आप हिंदू धर्म को, हम मुस्लिम धर्म को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बात हेट्रेड स्पीचेस की बात आ रही थी, वहाँ पर बात आ रही थी कम्युनलिटीज़ की। आज ज़रूरत इसी बात की है कि हमें इंसानियत को फ़रोग़ देना चाहिए। अभी मैंने 2 दिन पहले एक फतवा जारी किया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर अभी आपके सामने आ जाएगा मंजर पर। मैंने जैश मोहम्मद, चूँकि जिस दिन मोहम्मद का, पैगंबर का जन्मदिन था अभी 3 दिन पहले, तो मैंने उस दिन ये फतवा जारी करके कहा है कि मोहम्मद का नाम लेकर जो आतंकवाद, इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद हो रहा है, आज उस आतंकवाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है। मैंने बोल दिया है कि लश्कर तोयबा के माने होते हैं मोहम्मद की सेना। जैश मोहम्मद का मायना होता है मोहम्मद के साथ जो लोग रहते हैं, उनके साथ रहने वाले लोग। तो क्या मोहम्मद का यही काम था? पीस बी अपॉन हिम? नहीं। अभी हमें आज इस वक्त में जो इस्लाम है, जो इंसानियत का, अगर इस्लाम कहता है कि नीचे निगाह करके चलो, आपके पैर से चीटा ना मर जाए, वो इस्लाम इनोसेंट लोगों को बम उड़ा के मार देने की कैसे इजाजत दे सकता है? आज इसकी बदलने की जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है, जो इस पूरी दुनिया के अंदर अभी हमने जाके यूनाइटेड नेशंस में जाके डिक्लेयर कर दिया है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां से सारे धर्मों की, जहां से धर्मों के सारे मामलात की ये आवाज़ उठेगी, जहां इंसानियत की आवाज़ बुलंद होगी। यही पैगाम है। जहां तक सच भारत की बात है, चूंकि मैं हमेशा भारत और भारतीयता की बात करता हूं, मेरा धर्म मेरे घर के अंदर मेरी आस्था हो सकती है, गेट के बाहर वी आर इंडियन, वी आर इंसान। हमारी बुनियादी बात यही है, यही हमारा पैगाम है। आज सच भारत की जो बात हो रही है, गिरिराज जी, ये सच है जो आपने अंदर की बात थी आपकी, आपने कहा था कि इस देश की गरीबी को खत्म करना चाहिए। हम धर्मों से ऊपर, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र की बात हमारे इंद्रेश भाई जी ने बात कही, बहुत अच्छी बात है, हमें इस पर अमल करना चाहिए। हमारे स्वामी जी, हमारे आचार्य लोकेश मुनि जी यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी बात को बहुत शॉर्ट करूँगा। असल में
जो जरूरत है इस बात की, जो हमारा धर्म है, हमारी आस्थाएं स्वामी जी की सनातनी हो सकती है, उनकी अलग हो सकती है, वो श्वेतांबर हो सकते हैं, दिगंबर हो सकते हैं, हम इस्लाम के मानने वाले हो सकते हैं, मगर आप यकीन से माने, आज हमें 5 साल हो गए, ये हमारी पूरी टीम है, जब हम बाहर जब निकलते हैं इस कदर लोग खुश होकर मोहब्बत से हम लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें इंसानियत नजर आती है, उन्हें धर्म नजर नहीं आ रहा होता। इंसानियत की बात हमें करनी चाहिए। इंसान और इंसानियत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, आपने बहुत ही आसानी से ये कह दिया कि मज़हब नहीं समझता आपस में बैर रखना। आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, सादर प्रणाम। His Holiness, what is your message to the world today for establishment of peace, harmony and coexistence with tolerance and acceptance? सबसे पहले तो मैं एसोचैम और उसके साथ साथ टाइम्स फाउंडेशन, शेरी फाउंडेशन को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय और जिस विषय की आज दुनिया को ज़रूरत है उस विषय पर राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया। और आज भी हमने अभी भाई इंद्रेश जी को सुना, गिरिराज जी को सुना, मेनका जी को सुना, स्वामी जी को सुना, इमाम साहब को सुना। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं, जब हम शांति की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, किंतु विश्व शांति के लिए सबसे पहले मन की शांति जरूरी है। बिना मन की शांति के कदापि विश्व शांति का सपना साकार नहीं हो सकता। और विकास के लिए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास के लिए भी समाज के अंदर शांति और सद्भावना की जरूरत है। और उसका शुभारंभ जो है, सबसे पहले हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। और मुझे लगता है यहीं से धर्म का, अहिंसा का शुभारंभ होता है। दूसरी बात जो है, जब तक हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा नजरिया ठीक नहीं होगा, जब तक हम अपने अपने चश्मे से चीजों को देखने रहेंगे, तब तक हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। एक मेले के अंदर एक हिंदू सन्यासी थे, उन्होंने कहा जी कि आज चिड़िया बड़ा अच्छा बोल रही है। तो किसी ने कहा चिड़िया का अच्छा और बुरा क्या बोलना? बोले नहीं नहीं, आज तो चिड़िया कह रही है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। एक मौलवी साहब वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मेले में एक किराने का व्यापारी था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है हल्दी मिर्च डगरक, हल्दी मिर्च डगरक, हल्दी मिर्च डगरक। एक सब्जी वाला गुजर रहा था, ठेले वाला, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है, चिड़िया तो कह रही है गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। एक पहलवान वहां से गुजर रहा था, उसने कहा चिड़िया की आवाज तो मुझे सुनाई दे रही है भाई साहब, चिड़िया तो कह रही है दंड मुदगल कसरत, दंड मुदगल कसरत, दंड मुदगल कसरत। गिरिराज जी कहना यही चाहूंगा, जाकी रही भावना जैसी। अगर हमारा दृष्टिकोण ठीक है, अगर हमारा नजरिया ठीक है, अगर हमारी सोच सकारात्मक है, अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, अगर हमारा भाव विधायक है, हमें सब कुछ सुंदर दिखाई देगा। अपेक्षा है हम अपनी नजर को ठीक करें, नजरा बदलते देर नहीं लगेगी। हम दृष्टि को ठीक करें, दृष्टिकोण को ठीक करें, संसार को बदलते देर नहीं लगेगी। अपेक्षा यही है, जैसा अभी इमाम साहब ने कहा, स्वामी जी और हम लोग वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में सॉल्ट लेक सिटी में इकट्ठे हुए। भारतीय सन्यासी मंडल एक ही जगह ठहरा हुआ था, और जब हम अपने स्थान से कार्यक्रम के लिए गुजरते, हाथों में हाथ लिए हुए एक सनातन परंपरा का शंकराचार्य के तुल्य जो है एक आचार्य हैं, एक इमाम हैं, एक जैन मुनि हैं, एक बौद्ध भिक्षु है, हाथों में हाथ लिए, सारे लोग आश्चर्य की नजरों से देखते थे, ये क्या है? हमने कहा यही हिंदुस्तान है, यही भारत है। और हमें इस बात को समझना होगा, भारत के अंदर हम सबको मिलकर के किस प्रकार से हम अपने दिमागों को, अपनी नजर को, अपने दृष्टिकोण को ठीक करके आगे बढ़ें। अगर ऐसा हुआ तो सचमुच में मैं इतना ही कहूंगा, जैन दर्शन ने, हालांकि कुछ एक लोग एक प्रतीक को लेकर के, सारी दुनिया जानती है कि जैन धर्म जो है जीव दया के मामले में, अहिंसा के मामले में एक अनूठा उदाहरण है। अभी इमाम साहब ने कहा, हमारी इस्लाम कहता है कि पैर के नीचे चींटी नहीं मरनी चाहिए,
मैं इमाम साहब से भी आह्वान करना चाहता हूँ, इमाम साहब आप झंडा उठा लीजिए, करोड़ों करोड़ों पशुओं को जो काट दिया जाता है उसके विरुद्ध एक आवाज बुलंद कीजिए, हम सब आपके साथ में होंगे। सचमुच में आज ऐसे काम करने की जरूरत है। और अब ये यूनाइटेड नेशंस ने भी, यूनेस्को ने भी, यूनिसेफ ने भी, ये सबके समझ में आया। बान की मून जी ने जब संदेश भेजा वर्ल्ड लीजन पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कहा कि हिंदुस्तान में अगर कोई बड़ा बदलाव लाना है तो धर्मगुरुओं के माध्यम से। आज भी हमारे स्थानों पर हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के अंदर करोड़ों करोड़ों लोग पहुंचते हैं। अगर ये धर्माचार्य अपने पास आने वालों को सही दिशा दे, जैसे हमारे स्वामी जी एक काम कर रहे हैं, जो है जिसको लेकर के एक वॉश अलायंस, ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के माध्यम से जो है स्वच्छता के लिए, हाइजीन के लिए, सैनिटेशन के लिए, मैं समझता हूं गिरिराज जी आपने जो गरीबी की बात की, अगर हमारे धर्म स्थानों पर आने वाले साधु सन्यासी गरीबी को मिटाने के लिए, अभाव को मिटाने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करने के लिए, नशे को खत्म करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण के लिए जागरूक करने लग जाए, इस दुनिया को बदलते देर नहीं लगेगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, अपेक्षा यही है, जैसा हिंदू जैन ने भी संदेश में कहा, ये अध्यात्म जो है, मैं केवल अपनी बात यहां खत्म करना चाहूंगा, हम धर्म को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझे। धर्म के 3 आयाम हुआ करते हैं, उपासना, नैतिकता, अध्यात्म। आज कठिनाई क्या हुई है, हमने केवल उपासना को धर्म मान लिया। मंदिर में गए, मंदिर में जाना बुरा नहीं है, मैं ये भी स्पष्ट करूं, उपासना भी बुरी नहीं है, वह भी उपयोगी है, किंतु वहीं पर अटक जाना, घंटा बजा करके प्रभु मोरे अवगुण चितन धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, और फिर से समझते हैं कि आज के सारे पाप साफ, और कल से वही घोड़ा और वही मैदान। मुनि महाराज के चरण स्पर्श किए या डुबकी लगाई। बंधुओं और बहनों, उपासना भी उपयोगी है, किंतु हमारा दूसरा आयाम होना चाहिए जीवन में नैतिक और चारित्रिक मूल्यों का समावेश। और तीसरा उससे भी महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हमारे कनौरिया जी करा रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं, वह है जीवन में अध्यात्म का अवतरण। और जब अध्यात्म का अवतरण होता है तो मैं और पर का भेद नहीं रहता, स्व और पर का भेद नहीं रहता, और स्व और पर का जब भेद मिटता है, सचमुच में अध्यात्म घटित होता है। मैं अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं, सामने सेकंड का सुइया भी चल रहा है, स्व और पर की बात के साथ ही अपनी बात संपन्न कर रहा हूं। अगर जब तक हमारे भीतर 3 प्रकार की चेतना, स्वार्थ की, परार्थ की और परमार्थ की, स्वार्थ जब तक प्रबल होगा, हमें परार्थ और परमार्थ की बात सूझेगी नहीं। कनौरिया जी को यह सेमिनार करना क्यों सूझता है? क्योंकि इन्होंने स्वार्थ से ऊपर उठ करके परार्थ और परमार्थ के लिए भी ये चिंतन करते हैं। और बंधुओं और बहनों, जब तक स्वार्थ प्रबल होता है, फिर क्या होता है? एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, मैं ये रमेश भाई को भेज रहा हूं, 5 लाख रुपए उनको दे देना। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। अरे उसने कहा अरे जो 5 लाख रुपए दिए थे मैं रमेश भाई को भेज रहा हूं, उन्हें दे दे। बोले हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही है। ये मोबाइल से बात कर रहे हैं ना, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा है। जब तक हमारा स्वार्थ की चेतना प्रबल होती है, हमें परार्थ और परमार्थ दिखाई नहीं देता है। अपेक्षा इसी बात की है, अध्यात्म ने यही सिखाया है, हम अपने स्वार्थ को विगलित करें, तभी जाके हम परार्थ और परमार्थ की दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम अरहम। आचार्य जी ने कितनी ब्यूटिफुली ये बताया है हमें कि अध्यात्म हमारे जीवन में कितना अनिवार्य है। इसी बात के को जी से ये पूछें, सर आपको क्या लगता है कि मानवता एवं अध्यात्म को यदि हम भारतीय शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करें, तो क्या आपको ये लगता है कि हम सभी धर्मों को शांतिपूर्वक साथ में रहने का बढ़ावा दे सकते हैं? क्योंकि संस्कार से आए हुए जो मानवता अध्यात्मता की जो बीज होती है, वही बीज आगे चल के फल स्वरूप देश का भविष्य बनती हैं। आपके इस विषय पर क्या क्या थॉट्स हैं? सर्वप्रथम मैं डॉक्टर हरिप्रसाद कनौडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने
मुझे आमंत्रित किया। परम आदरणीय चिदानंद मुनि जी महाराज, जनाब इमाम इलियासी साहब, हमारे लोकेश मुनि जी महाराज, सभागार में बैठे हमारे मान्यवर इंद्रेश कुमार जी, जो कि इसी काम में दिन रात लगे हुए हैं, हमारे छोटे भाई गिरिराज सिंह जी, एंड सभी सम्मानित श्रोतागण। The gathering is very distinguished. I am really wondering whether I should speak in English or Hindi, but I would rather use both. सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही पॉइंटेड स्पेसिफिक बात पूछी है हमसे, लेकिन मैं शुरू से मानिका जी को भी सुन रहा था, गिरिराज जी को भी, इंद्रेश जी को भी, और अभी मैंने मुनि जी को भी सुना, इलियासी जी को सुना, अपने लोकेश मुनि महाराज को भी सुना। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आयोजन बहुत अच्छा है। इसमें आप कॉन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमैनिटी, पावर एंड स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो नितांत व्यक्तिगत चीज़ होती है। और एक कहावत है कि घर में दिया जलाने के बाद ही मस्जिद में दिया जलाया जाता है। तो बुद्ध ने भी कहा है आप तो दीपो भव। आप अगर स्वयं एनलाइटेंड नहीं, इफ़ यू आर नॉट एनलाइटेंड योर सेल्फ, and if you have not realized that what is your duty towards humanity, how can you preach that to the public? You can't do it. ये हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये भारत भूमि विशिष्ट इसीलिए है, दिस अर्थ इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज यहाँ पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को छोड़कर बाकी जितने बड़े रिलीजन हैं सब की जन्मभूमि यही है, यहीं से पैदा हुए। और अगर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की भी देखें तो ईसा मसीह भी क्रिश्चियनिटी को स्टार्ट करने के पहले वो आए और कश्मीर में उन्होंने बड़ी साधना की थी और शैव स्थानों पर काफ़ी उनके अवशेष हैं। इसी प्रकार से मोहम्मद साहब भी काफ़ी प्रभावित रहे हैं यहाँ के रिलीजन से। तो सारी मजहबें, ऑल रिलीजन प्रीच द सेम थिंग, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। एक ही सत्य होता है जिसको अलग अलग बुद्धिमान लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। लेकिन मैं आना चाहूँगा जो बात गिरिराज जी ने कही है और जो बात मानिका जी ने कही है, इन दोनों के कंबाइन करके एक थोड़ा सा छोटी टिप्पणी करूँगा, फिर मैं शिक्षा पद्धति पे आऊँगा। स्वामी विवेकानंद जी को हम सभी मानते हैं, इस देश में पूरे विश्व में मानते हैं। तो स्वामी जी जब वापस आए और रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया तो बेलूर मठ में रहने लगे और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा आश्रम स्थापित किया, रामकृष्ण मिशन बनाया और बहुत ही अच्छे नौजवान। रामकृष्ण मिशन ही एक ऐसा ऑर्डर है या एक ऐसी संस्था है जिसमें अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट नहीं हैं तो आपको संन्यास की दीक्षा नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी शिक्षा पहले पूरी होनी चाहिए। तो सारे नौजवान थे और पढ़े लिखे लोग थे और स्वामी जी के पास अपना रहते थे। बेलूर मठ में खूब सत्संग चलता था। बंगाल में प्लेग फैल गया और जब प्लेग फैला तो स्वामी जी सबको लेके चले गए सेवा करने। अब रोज सुबह गांव में जाना, लाशों को ढोना, दाह संस्कार करना, चिकित्सा करना और कहीं रात में कहीं कुछ मिला तो एक आध रोटी कुछ
चावल इत्यादि मिल गया तो भोजन करना, फिर सुबह 4 बजे उठ के वही काम करना। तो शाम में भोजन के पहले यदि मिलता था भोजन तो एक कुछ सत्संग भी होता था। तो लोग बैठे थे, तो एक शिष्य ने कहा, स्वामी जी हम कब जाएंगे? उन्होंने कहा कहाँ? कहा वापस आश्रम जाना है। कहा जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे ये तो तय नहीं है। जब बंगाल से प्लेग खत्म हो जाएगा तो चलेंगे। उन्होंने कहा हम लोग तो आ गए, पूरा घर परिवार छोड़ के आपके यहाँ, कितना बढ़िया भजन होता था, समय से भोजन भी मिलता था, विश्राम भी होता था। यहाँ पे तो जीना नरक हो गया, सुबह से शाम तक लाशी हो रहे हैं हम। स्वामी जी बहुत हंसे। उन्होंने कहा बेवकूफ, पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म होता है क्या? इससे बड़ा तो कोई धर्म है ही नहीं। जो गरीब है, जो अभावग्रस्त है, जिसको दवा की जरूरत है, जिसकी सेवा की जरूरत है, अगर तुमने उसको कुछ मदद की तो यही तो ईश्वरीय कार्य है, और कोई दूसरा ईश्वरीय कार्य है नहीं। इसमें तुमको ये नहीं देखना है कि वो गरीब है कि अमीर है, कि वो ब्राह्मण है कि वो शूद्र है, कुछ देखना नहीं है, उसकी सेवा करनी है बस। इसी बात को बहुत लोगों ने कहा है अपने अपने ढंग से। एक हमारे अलीगढ़ के बहुत ही मशहूर शायर हैं गोपाल दास नीरज। तो नीरज जी की एक बड़ी छोटी सी पंक्ति है, तो अपने गज़ल में कहते हैं कि गर तूने कभी किसी के आंसू पोछे होंगे, कभी किसी के आंसू पोछे होंगे, यकीनन उस वक्त तू खुदा के करीब होगा। You must be by the side of the God if you had given relief to anybody who is in pain. ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। अब आपकी बात पर मैं आता हूँ। हमारे देश में दुर्भाग्य से नैतिक शिक्षा का जो अभाव हुआ है, उसकी वजह से ये सारी समस्याएं मुझे दिख रही हैं। पिछले 50 वर्षों में हम लोग जब बचपन में थे तो हमने तो कभी जाना ही नहीं गांव में कि कौन किस जात का है, हमें पता नहीं होता। क्योंकि गांव में कोई भैया होता था, कोई चाचा होता था, कोई मामा होता था, कोई ताऊ होता था, कोई दादा होता था। उसकी जात क्या है, उसका नाम क्या है, ये भी नहीं जानते थे। और हम होली भी खेलते थे और ताजिया भी उठाते थे, हमारे ही दरवाजे से उठता था। कहीं कोई भेदभाव, ये सारा कुछ ये बाद की विकृतियां आई हैं, और ये इन विकृतियों का कारण है वो नैतिक शिक्षा का अभाव, जो कि बचपन से पहले हम लोगों को बताया जाता था। आज अभी कल फिर आया एक अखबार में कि 4 साल के बाद फिर निर्भया कांड हो गया। तो हम लोग तो बचपन में पढ़ते थे, मातृवत पर रारेशु पर दर्वेशु लोष्ठवत, जितनी भी नारी है वो सब तुम्हारी माताएं हैं, और दूसरे का धन जो है वो विष्ठा के समान है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य भी मत बोलो, किसी को कष्ट पहुंच सकता है उससे। तो ये नैतिक शिक्षा का अभाव जो है ये कारण है, और दुर्भाग्य से हम लोग अपने को प्रगतिशील या धर्मनिरपेक्ष या जो भी शब्द आप ले लें कह के हम उसका विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन का परिणाम क्या होता है?
जो अभी मानिका जी ने बताया कि जैन महोदय थे, वो बड़े धार्मिक थे और गाय की हड्डियों से जिलेटिन बना रहे थे। वो बिलियनर है बहुत, उनको आनंद है, उसमें आनंद नहीं है। अभी जितने पैसे वाले थे उनका आनंद खत्म कर दिया मोदी जी ने। आनंद संचय में नहीं होता। हमारे यहाँ दीदी माँ साध्वी रितंबरा हैं वृंदावन में, बच्चों के लिए, अनाथों के लिए काम करती है। वो बहुत अच्छा वाक्य बोलती है। वो कहती हैं कि जो बटोरते हैं वो विषाद होता है और जो बांटते हैं वो प्रसाद होता है। अभी स्वामी जी ने ईशावास्योपनिषद का पहला श्लोक सुनाया, लेकिन ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है तेन त्यक्तेन भुंजीथा। कितना? तो कहता त्याग पूर्वक, जितनी जरूरत है उतना। अभी गिरिराज जी बता रहे थे कि हमारे पास 17.5% आबादी है और 2.5% भूमि है। आज क्या हो रहा है? प्राकृतिक संसाधनों का जो हम शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, अत्याचार और व्यभिचार सिर्फ नारियों पे नहीं हो रहा है, प्रकृति पे हो रहा है। आप ये बताइए कौन सा लॉजिक है कि देश की, पूरे विश्व की 20% आबादी 80% संसाधनों का उपभोग करती है और 80% आबादी को विश्व के 20% संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। असमानता तो यहां है। ये क्यों आई? क्योंकि हमने बटोरने का सिद्धांत अपना लिया। अगर हम त्याग का सिद्धांत अपनाएं कि हम उपभोग उतना ही करें जितना हमको आवश्यकता है। तो एक बार मैं बचपन में अपने पिताजी से बात करता रहता था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप हमको कुछ ऐसा बता के दीजिए कि जिससे कि मैं उसको अपने आइडियल के रूप में बराबर याद रखूं। तो उन्होंने लिख के दिया, गिव गिव एंड गिव, गिव गिव एंड गिव, बिकॉज गिविंग इज द सीक्रेट ऑफ अबंडेंस। हमने कहा ये क्या बात हुई? अगर मेरे पास बहुत कुछ है तो हम सब बांट ही देंगे। उन्होंने कहा हाँ, अगर ईश्वर ने तुमको चुना है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तो ये चुनाव ही इसीलिए हुआ है कि तुम दूसरों की सेवा करो। Can we have the entire family on stage, please? इस मौके पर मैं एक आखिरी नसीहत के साथ, चूँकि इंसानियत का पैगाम है, सारी पूरी फैमिली यहाँ पर है, आप सभी लोग हैं, एक इंसानियत का मैं आपके सामने एक पैगाम रखना चाहता हूँ जिसे आप अपने एक नसीहत के तौर पर अपने जीवन में लेंगे। असल क्या है कि अभी भारत में 70,000 डेथ हुई हैं एम्बुलेंस के अंदर। चूँकि एम्बुलेंस के लिए हमारे पास जगह नहीं है, जैम की वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश में हुआ है कि जिसकी वजह से एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची। तो मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप एम्बुलेंस को देखें, चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, सबसे पहले उसको आप जगह देंगे और उसके बाद अल्लाह पर से, परमात्मा से 1 मिनट हाथ उठा के दुआ करेंगे कि जो भी इसमें इंसान बीमार जा रहा है, अल्लाह परमात्मा उसको शिफा दे। यही पैगाम है, यही इंसानियत है। चूँकि सबसे बड़ी इंसानियत, सबसे बड़ा नेक काम यही है कि हम दूसरों के काम आए, यही हमारा पैगाम है। कनौरिया जी, उनकी फैमिली इसी काम को लेकर आगे बढ़ रही है। चूँकि इनका मकसद इंसानियत है, स्पिरिचुअलिटी के साथ इंसानियत को जोड़कर इन्होंने जो काम किया है,
इनके परिवार को, हमारे इनके जो बड़े बेटे हैं, इनके छोटे बेटे हैं, बहुएं हैं, इनकी बेगम है, हमारी सब धर्म गुरुओं की तरफ से इनको आशीर्वाद के साथ साथ अल्लाह ताला इनको इसी तरह से आगे हर साल इसी तरह के इंसानियत के काम होते रहे, इन्हीं दुआओं के साथ। मैं चाहता हूँ ये यूनिटी, ये पीस, ये हार्मनी इन द फैमिली, मुझे तो लगता है यही सच भारत है और यही सच भारत का संदेश है। कुछ भी करें इनकी तरह से, माना कि इस ज़मीं को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, बस अपने अपने प्रयास करें। Thank you, Shraddha. Thank you, you, Swamiji. everybody. Thank you Thank so you bringing much. us together. May I request Ms. Devita Kanoria ji to please felicitate our eminent speakers on the panel today. We are, my family and we are all blessed by all the religious leaders, and it is the God will. And we have migrated from Rajasthan to Calcutta and then Bihar. मेरे छोटे भाई गिरिराज जी जो मुझको भैया कहते हैं, मिनिस्टर बनने के बाद में कितनी नम्रता है उनमें। हम दोनों एक ही गांव के हैं। हाँ, हम गिरी जी आप आइए, गिरी जी आइए। हाँ, देखिए, मंत्री बनने के बाद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद भी आपके सबके सामने मुझे बड़ा भाई कहें, कितनी नम्रता है। हम दोनों एक ही गांव से हैं। माँ जगदम्बा की कृपा है, वहीं से माँ जगदम्बा वैष्णवी देवी गई हैं। वहाँ गंगा हमारे घर के पीछे में बहती हैं और वहाँ फसल बहुत होती है, इसीलिए हम लोग वहाँ बिहार में गए। हमारा काम था, मेरा जन्म भी वहीं हुआ, लेकिन हमारे पिताजी कलकत्ता रहते थे, आना जाना रहता था। सो ये सब ईश्वर माँ जगदम्बा की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, धर्म गुरुओं की कृपा है। इमाम साहब हमारे कलकत्ता ऑफिस में भी आए थे, नमाज पढ़े, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने कहा कि गंगा हमारे घर के पीछे बहती है, पर हम नज़रों से देखते हैं कई गंगाएं आपके आंगन में बहती हैं। कनौड़े जी बहुत गंगा आंगन में भी आई है, भर फ्लड आता था, बाहर आती तो आंगन में आ जाते थे, हम लोग बच्चे ऐसा उसमें तैरते थे। अच्छा जी, लीजिए। जो वैदिक मंत्र चांट कर रही थी वह मेरी बेटी है, वह मद्रास में रहती है, वह होलिस्टिक हैप्पीनेस सेंटर चलाती हैं और बच्चों को वैदिक मंत्र भी सिखाती हैं।